Gentlemen, namaste and a very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 173rd episode. In the last 172 episodes, we have interacted with nearly 3,000 plus good leaders on this very platform where they have shared their ideas, opinions, innovations and what all new are they doing in the education space. तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स के 173वें एपिसोड में। 172 एपिसोड्स में हम लोग करीबन 3000 से ज्यादा स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत कर चुके हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया कर रहे हैं और शिक्षा हमारे साथ किस तरीके से एवोल्यूट हो रही है। So today as well we have an amazing lineup of guests with us who will be sharing their ideas, their thoughts, their opinions on how is the new age content affecting teenagers. आज अगले 60 मिनटों में हमारे स्पेशल गेस्ट या एक्सपर्ट से ये बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे किशोर हैं, टीनेजर्स हैं, उन पर जो नया कंटेंट है जिसको हम ओटीटी कह रहे हैं, कभी कोई आई वुड नॉट टेक द ब्रांड नेम्स बट हम सभी समझ रहे हैं जो नई वेब सीरीज का एक पूरा कंटेंट रेल चालू हो गई है, वो रेल कैसे इन टीनेजर्स को अफेक्ट कर रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके आसपास के पूरे फैमिली एटमॉस्फेयर को कैसे इंपैक्ट कर रही है। Because the biggest challenge with any form of content is once it becomes a part of your life revolves around it. Content की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक बार वो आपके जीवन में कहीं दरवाजे से हल्की सी एंट्री करता है और पता पड़ता है आप उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। वो कंटेंट आपका नहीं, आप कंटेंट के हो जाते हैं। So thank you so much all these amazing speakers for joining us today. Most importantly, before we start, Love World Web Talks is a bilingual platform. So आप अंग्रेजी या हिंदी में से कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं. You can use either English or Hindi in your conversation. Secondly, it's a timed platform. Think of it as a speaking sprint. It's not a speaking marathon. Once the speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It's just to keep the activity crisp and enjoyable, ताकि आपसे सबसे अच्छा content तुरंत जल्दी से बाहर निकल सके. So a very warm welcome to all the guests today. A very warm welcome to the 173rd episode. Let's talk about effects of web series on teens. और इस टॉक को शुरू करने के लिए let's invite somebody who is going to add a very interesting perspective to the discussion because he comes from a place जो कि इंडिया के लिए टीनेजर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा है. टीनेजर्स का मिक्स with this content का छौंक changes life altogether. Over to Shishir ji for the next 3 minutes. A very warm welcome, sir. Very warm welcome to you all. I must say, really distinguished guests. My respects for all the panelists. As you had said, Kota indeed is a very huge hub, and we do get a lot of teenagers. Roughly 1.52 lakh students actually, except for COVID times, they used to come down to Kota, and now they're coming back also. Yes, it is indeed. You can say we never imagined it that, but it's a teenage hub also. And शायद आपको सुनकर बहुत मजा आएगा कि या अजीब लगेगा, जो भी कह सकता हूँ। एक टीवी आया था, कौन सा जो मोबाइल टीवी शुरू किया था किसी ने, कोई कंपनी थी, और उसकी हाईएस्ट सेल अगर ऑल ओवर इंडिया जो रिपोर्ट करी गई थी, दैट वाज इन कोटा. Kota actually used to be a hub which was kind of isolated from all the distractions. Pubs नहीं है यहाँ पर, दूसरे distractions नहीं है, कोई साइट सीइंग के spots नहीं है, तो all you do is you come here and study. There was no distraction available. As you said, the topic is कि फर्क क्या पड़ता है OTT का, कुछ तो बड़े obvious फर्क हैं. Suddenly teenagers are being exposed to something which is, which was kind of, you can say, in quote unquote forbidden content. I mean, that was content which was regulated, which was supposed to be a more mature content that becomes available, and teenagers are very, very curious about it also. So truth is, ये जितना भी so-called mature content OTTs पर आता है, much of it is targeted at teenagers only, and a very enormous amount of viewership actually is targeted at teenagers. I wouldn't say that it's a very big discovery, but it is not something which is very great. Effect is not good. There are reasons because of which this kind of content was edited. क्या कर सकते हैं? 3 मिनट का समय है तो फटाफट let me rush, है ना? I mean, I'm not going to speak the obvious. Is it good? No, it's not good. Can we stop it? No, we can't stop it. We are not China. There's no way we can control it. No. So in that sense, I do appreciate Chinese policy. They did manage to ban on a national scale objectionable content, and they were also criticized a lot for TV free press को नहीं आने दे रहे, and you are
subjecting your everybody, the generation, to your ethics. But I think they protected their teenagers quite well. I'm no admirer of China, of course, but then at least in this respect, they were good. We can't do that. We are beyond that point. Huh? क्या कर सकते हैं हम? Actually, I'm not sure if you have realized this, but TV serials लाइन से एक के बाद एक एपिसोड्स लाइन अप हो गए. हमने कहा ये OTT की खासियत है. आपको कोई सीरीज देखनी है तो 12 एपिसोड्स लाइन से देख सकते हैं. Have you ever imagined कि जब हम चैप्टर्स पढ़ाते हैं तो मान लीजिए जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई, अब एक लेक्चर आज होगा, एक लेक्चर कल होगा, एक लेक्चर परसों होगा, वो भी तो OTT कंटेंट बन सकता है ना. बच्चे को बहुत मजा आ रहा है ना. तो ये तो 12 लेक्चर एक साथ देख डालना बैक टू बैक ना. तो इन फ्यूचर there are negatives of it, and I'm sure all will talk about it. Truth is, can we stop it? No, we can't stop it. But then, can there be some plus sides to it? I believe that with time, बहुत and be OTTs पर आएगा, might have academic end of vision. Something that can actually capture the imagination of children, and they can be motivated to study well in a new format. Possibly, this could be one thing. Secondly, अगर बहुत जो ऑब्जेक्ट्स अगर आपको Thank you so much, Shashiri. The first 3 minutes were all right, but I think आपने बहुत अच्छा सा स्टार्ट दे दिया पूरी टॉक को कि हम इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसका कुछ करना चाहिए. So हम रादर एक डिलेमा है जिसको जी रहे हैं, एक पैराडॉक्स है जिसको बिल्ड कर रहे हैं. हम एक विडंबना के बीच में खड़े हुए हैं और हम कोई एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. So you talked about एक कोटा को एक ऐसा आइसोलेटेड स्पॉट बनाया गया टीनेजर्स के लिए जहां वो आके पढ़ाई पर फोकस कर सकते थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, कोई डाइग्रेशन नहीं था. लेकिन आज आप किसी भी जगह चले जाइए, वो डिस्टरबेंस हमेशा आपके साथ, आपकी जेब में साथ में चलता जा रहा है. OTT पर 12 एपिसोड एक साथ आ जाए और ऐसे ही अगर शायद साल भर का कुरिकुलम एक ही बार में आ जाए तो बच्चे उसे पढ़ लेंगे. वी आर हाईली डाउटफुल ऑफ इट, बट ये ये सोचने में बड़ा अच्छा लगता है. खुदा नहीं न रही, आदमी ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए. तो हम सोच तो सकते ही हैं कि ठीक है ऐसा हो जाए तो बच्चे शायद इतना कंटेंट कंज्यूम कर ले. यू टॉक्ड अबाउट द चाइना कंटेंट बैन. उस लेवल पे हम रेगुलेट नहीं कर सकते बिकॉज एज अ कंट्री, एज अ कल्चर वी आर क्वाइट एवोल्यूटेड. हमें अपनी फ्रीडम का से बहुत ज्यादा प्यार है. तो हम अभी वापस इस पूरे डिस्कशन के अंदर इफेक्ट्स ऑफ टीन्स के साथ साथ हम ये भी जान पा रहे हैं कि हम कितने ज्यादा मजबूर हैं या हमारे हाथ कितने बंधे हुए हैं. सो व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक विद सच limitations on us as adults, just think of a scenario 10 years down the line when these teenagers will be the decision makers. और तब क्या क्या हो रहा होगा. So let's invite the next guest who comes in from the higher education background, who had a life in the marketing or rather the admission space of universities, who right now has ventured into a completely new initiative with ad and promotions and marketing from Pune. She used to head the admissions for one of the very respected institutions in India. A very warm welcome is Divya Mohan. आपने बच्चों का ट्रांजिशन काफी समय अपने जीवन में देखा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में आता है वो उसके लिए सबसे कंट्रोवर्शियल एज होती है, एंड अब उसमें एक नया तड़का है OTT का. So how is that impacting them? Over to you for the next 3 minutes. A very warm welcome. Hello everyone. Good evening to one and all present here. To start with, I would like to thank the organizers for giving this wonderful opportunity and to speak about this wonderful topic of effects of web series. So as Dakshas told us that मैंने देखा है बच्चों को right from studying in college for 8 to 10 hours to the pandemic hitting us and they're not in college anymore, where we struggle to get them online for their studies. And it was really difficult, but yes, the university which I was working with, they aced at it, and they could get the students to actually sit for their lectures and make them edit. So coming back to the topic, the effects of web series on today's teen. So the online entertainment industry, that is the OTT platform, it has remarkably grown in the past few years. Pandemic होने के बाद तो और भी ज़्यादा वो hit हुआ है, because everybody is glued to your TV or your laptops or your mobile because they had nothing else to do. But of course, it has effects on today's generation. And it is possible because the introduction of faster and economical internet services which we have
right now in the market, and the compatibility of all the OTT platforms to the mobile phone, wherein the person or the youth or the teenager or an oldie can sit anywhere, anytime and watch the web series or any content on OTT platform. So now when you say OTT platform, we have Netflix, we have Amazon, हमारे पास काफी सारे platforms है जिसमें काफी सारे web series है, and web series, they focus only on binge watch. So binge watch means you sit to watch one episode, which is probably 30 minutes, and you end up watching 10 episodes because they stop at such a point wherein आपको लगता है कि अरे यार एक और एपिसोड देख, फिर वो एक और होके you end up killing almost 7 to 10 hours of your day or probably your night, which results in sleepless nights, less human interactions, and less social life when it comes to teens especially. Now, we as adults, even if we binge watch, we know कि चलो आज कर लिया, अब बहुत दिनों तक नहीं करना है, we need to focus on other things. But as kids, they would be stuck to that. आज Money Heist देख लिया, कल कोई और देख लिया, कल कुछ और देख लिया, and they would be stuck to that. Of course, it has mental and physical effects on kids. One, they don't interact with anyone, they don't have any physical exercise, and they don't do anything. They become a couch potato sitting in front of the television the entire time or in front of the laptop the entire time. So it's the responsibility of the elders or the parents to actually guide them. ठीक है तुम लोग देख लो, but prioritize other things in life, because you cannot, as Mr. Shishir said, you cannot take that out, right? We cannot ban it. So it's better we prioritize on what you want to do. So that's how I would like to end this. Thank you so much, Divya ji. आपने बात करी struggle to get them online to study. उन्हें ऑनलाइन बुलाने में बड़ा कष्ट होता है जब पढ़ाना होता है, लेकिन ओटीटी पे बहुत आसानी से वो आ जाते हैं. ऑनलाइन एंटरटेनमेंट वो फटाक से ग्लू ऑन कर जाते हैं. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ विद ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, इन दोनों के बीच का अगर कोई ट्रेड ऑफ निकल जाए तो शायद हम लोगों का अल्टीमेट सोल्यूशन वहीं कहीं बैठा है, जहां वो एड्यूटेनमेंट हो जाए ताकि बच्चे के लिए हुक हो जाए आने के लिए एंड पढ़ने के लिए कोई कारण बन जाए. यू टॉक्ड अबाउट द रिमार्केबल ग्रोथ इट हैड. इकोनॉमिक इंटरनेट इसका एक बहुत बड़ा कारण है. ओटीटीज की कंपैटिबिलिटी, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर तुरंत जंप कर पाना, एक ही डिवाइस पर सब कुछ एक्सेस कर पाना, एंड फाइनली जिस पर ये पूरी इंडस्ट्री अभी मतलब व्हाट इट्स फीडिंग ऑन इज द बिंज वॉच सिंड्रोम. द रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग इट इज अ सिंड्रोम इज ये हम सबको है, और ये इतना अच्छे से है कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते इवन एज एडल्ट्स. वही मैंने इस टॉक की शुरुआत में कहा था, कंटेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो आपके घर में धीरे से घुसता है और आपका घर उसका हो जाता है. आप तो उसके एक मेंबर रह जाते हैं, कंट्रोल हमेशा कंटेंट का ही होता है. तो ऐसे में एज एजुकेशनिस्ट्स जब आप इसको देखते हैं, जब आप अपने आसपास की चीजों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि शिक्षा को किस डायरेक्शन में एवोल्यूट करवाया जाए. क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा एजुकेशन पे ही आता है, क्योंकि बच्चे का समय जो एजुकेशन में लगना चाहिए था वो अभी किसी और के अट्रैक्शन आवर्स में बिक रहा है. उसकी आई बॉल्स, उसके जितने घंटे वो डिवोट कर रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे, वो सारे कोई ना कोई खरीद रहा है. एंड व्हेन देयर इज अ बायर फॉर योर टाइम, यू डोंट हैव फ्री टाइम, और तब आप पढ़ नहीं सकते. So there's a lot of pressure in taking all your attention to something absolutely that you don't want. तो अगले इस सेक्शन में जहां पे अब हम स्कूल लीडर्स से बातचीत करेंगे, ये वो लोग हैं जो बच्चों को उनके एकदम पैसिव रोल से एक एक्टिव लर्नर की जिंदगी की तरफ ले जाने के लिए रोजाना कोशिश करते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये एंटरटेनिंग नहीं हो पाते. और ये एंटरटेनिंग होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एंटरटेनर्स नहीं है, ये टीचर्स हैं. पर इन दोनों की बाउंड्रीज रोज रोज लड़ रही हैं, तो क्या पता ये ट्रांजिशन कैसे होगा. A very warm welcome to the next speaker, who is a school principal, Mr. Gurmeet Singh, the principal of the Millennium School from Batala, Punjab. Gurmeet ji, over to you for the next 3 minutes. आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ओटीटी क्या कर रहा है? Instantly, well, I'm feeling that possibly I'm the wrong panelist, because I am also in love with the OTT, and in the last 4 or 5 months, I think I've consumed OTT like anything, like watching Crown and The Last Czars and Breaking Bad and then Rome.
And you know why I had to watch all these things? Whenever I was talking to my teachers, so they would say, "Sir, आपने वो देखा है? Sir, वो आपने वो देखा है?" So I was feeling that maybe I'm the primitive person, and suddenly this primitive person kind of discovered fire. अब वो फायर मेरे हाथ में आ गई. पहले मैं रॉ मीट खाता था, मैं पका के खा रहा हूँ. अब मसला ये है कि वो पके हुए मीट का मजा अपना है. So then what is happening? The cooking is continuing. Now, definitely, I would say that it is just as possible. It is just from the gluing of the children from one platform to another has happened. According to me, nothing else has happened, because before OTT, children were either hooked to Facebook, and then Instagram came, and then TikTok came, and then Snapchat came, and now OTT for the last few, maybe a year or two, because I started following OTT, rather this Netflix, etc., just around 4-5 months ago only. So my first series was A Suitable Boy. So I was telling my daughter, ये कहाँ देखी जा सकती है, कहाँ देखी जा सकती है? वो मसला ये है, the content is varied and it attracts even people of any age, people of interest. So since, as you said, that the switching over to from one channel or one that platform to another, it's so easy. So you kind of spend time. The good thing happening is that the as you said, that teachers are not entertainers. So I'm teaching grade 6. I teach 2 subjects, social science and English, because just sitting in the office would not help students at all. So I thought, why not? So when I talk to them, so that has helped me in a way. So like while watching Crown, so I kind of learned a number of new expressions, and which I passed on to the children. And then ultimately मेरे मुंह से निकल भी गया कि वो मैं Netflix पे देखता हूँ, मैं Netflix पे देखता हूँ. Suddenly I checked myself कि ये मतलब मेरी एज वाले नहीं है, छोटे हैं. Impact क्या हो रहा है कि impact is in my hand as a teacher. So if I become an entertainer, then possibly I'll be able to make better use of the OTT in the classroom. Thank you. Thank you so much, Gurmeet sir. And yes, आपने एक जो बहुत important factor है FOMO का, fear of missing out, यही हमें OTT की तरफ या किसी भी content की तरफ drive करता है कि यार ये आपने देखा कि नहीं, वो आपने देखा कि नहीं. So that fear of missing out drives us to this and drives these kids even more. जैसा आपने कहा कि शायद ये एक टीवी से ओटीटी की केवल एक जर्नी है. जैसे जब टीवी आया था तब भी इसी तरीके का एक माहौल बना था, उस समय भी इसी तरीके की बातें थी. लेकिन इज इट सो सिंपल नाउ? बिकॉज विद टीवी यू हैड द रिमोट कंट्रोल, बट नाउ दैट रिमोट इज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वो आपके पास नहीं है. टीवी आपको केवल कंटेंट बेचता था, अब कंटेंट आपका समय बेच रहा होता है. सो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड नाउ, बिकॉज दे आर इन अ सिचुएशन ऑफ एटलीस्ट एक्टिंग लाइक गॉड. तो एक्टिंग लाइक गॉड जो है वो एक फैक्टर है जो हम सबको थोड़ा सा परेशान कर देता है. सो लेट्स ट्राई टू नो फ्रॉम मोर ऑफ आवर एक्सपर्ट्स कि व्हाट डू दे थिंक. द नेक्स्ट स्पीकर हु इज गोइंग टू कम इन इज अगेन अ स्कूल प्रिंसिपल फ्रॉम अ स्टेट जो अभी एक पॉलिटिकल टर्मोइल झेल रहा है या उसके अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है. और वहां पर क्योंकि हम इंडिया में जब भी एक इलेक्शन आता है, उस इलेक्शन के साथ में सबसे पहले एक कंटेंट की दौड़ आ जाती है. बहुत सारा नए तरीका कंटेंट आपके सामने लाया जाता है और आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ ले जाया जाता है. तो ये चीजें बच्चों को, एंड ऐसे में एंटरटेनमेंट विथ योर स्कूल किड्स एंड द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे कंज्यूम, वो क्लासरूम को कैसे इंपैक्ट करता है. लेट्स ट्राई टू नो इट फ्रॉम देम. अ वेरी वार्म वेलकम मिसेस Tuhina Srivastava, the principal of State M.R. Jaipuria School from Kushi Road, Lucknow, Uttar Pradesh. Tuhina ji, over to you for the next 3 minutes. A very warm welcome. Right. Very good evening to all the panelists. And as you have already said, that I'm already residing in a happening state. So every day something new is happening. And of course, with the continuous change happening over all the sectors, of course, education cannot remain untouched. So education and children, because after a long period of time, now we are actually interacting with the children face to face. So actually we are knowing the gap which has happened due to this pandemic and how to fill this gap. We, as Gurmeet sir said, we have to become entertainers actually, because children have been staying at home since long and they have been
कॉन्स्टेंटली पहले तो हम ये बोलते थे कि भाई नो फोन नो फोन नो फोन, और अब हम सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई फोन लो, फोन नहीं है तो प्लीज परचेज, नेट नहीं है तो प्लीज परचेज, प्लीज गो फॉर इट. So now children, it has become my earlier also I have participated in one of the talks conducted by BBC. So it was the only question I asked simply was that everything is fine. My concern is पैंडेमिक खत्म होने के बाद हम इनके हाथ से फोन लेंगे कैसे? You know, this part is a very very important part. Web series ho, anything. I mean, right from the kids of pre-primary section, children are getting addicted. Why to go for teens and why to go for web series and all? It's right from the pre-primary level. चाहे वो videos हो, चाहे वो rhymes हो, children are getting addicted to screen, which is actually leading to sleeplessness, sleep deprivation, and then eyes पे effect, then isolation, social isolation हो जाता है बच्चों को. They're not ready physically, they're not active, they have come back to school fatty. So these are the effects which are actually, as educators, we have to take care, and how we all are aware that these are the negative effects. राइट कि आंखों पे प्रेशर है, ब्रेन पे प्रेशर है, नींद नहीं हो रही है, बच्चों को फिजिकल मूवमेंट नहीं मिल रहा है. बट देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? वी हैव टू एक्चुअली लुक फॉर द सॉल्यूशन आल्सो फॉर इट. The solution can only be, as rightly said, that we have to prepare ourselves to replace the screen, so that children are, they get attracted, they get motivated to come to school. This is happening. Children are not ready. Online, offline चल रहा है. Most of the parents are also on a comfort zone, and most of the children are obviously on a comfort zone कि फोन पे सब हो ही जा रहा है. 1 घंटे की क्लास होगी और 2 घंटे हम गेम खेल लेंगे. So these are the things which actually need to be checked, and we have to give them such things that they are actually entertained, and they are actually being attracted to the school atmosphere back. There are certain things which are traditionally. थैंक यू सो मच तुहिना जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बोले. एंड आई थिंक एक क्वेश्चन जो आपने सच में बहुत अच्छा पूछा, और वो बहुत रेलेवेंट भी है, कि आपने बच्चों को फोन दे तो दिया, आप उनको उस फोन पर ले भी आए पढ़ने के लिए, लेकिन जब ये सब खत्म होगा, दैट वी आर होपफुल ऑफ कि किसी दिन जरूर होगा, तो क्या हम वो फोन्स वापस ले पाएंगे? क्योंकि वो एक्सेस आपने अब उनके मूलभूत अधिकारों का पार्ट बना दिया. अब वो फोन जब छीना जाएगा तो वो फोन नहीं छीना जाएगा, वो फ्रीडम छीनी जाएगी. उसका सिंबलाइजेशन बहुत भारी हो गया है, तो अब उसे टैकल कर पाना उतना आसान नहीं होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने कहा कि अब जो बच्चे स्कूल वापस आए हैं, दे हैव बिकम ओबीस, जिसमें फूड तो एक कारण था ही, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक कारण था ही, बट जो कंटेंट ओबेसिटी है वो अभी हमें रियलाइज नहीं हो रही. अब लेकिन जैसे जैसे क्लासरूम में फ्रिक्शन बढ़ेगा, वो कंटेंट ओबेसिटी प्रिजुडिस के जैसे हर दिन फेस करनी पड़ेगी. और क्या उसके लिए हमारे टीचर्स और हमारा इकोसिस्टम तैयार है? क्योंकि अब जो बच्चों के सवाल हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, और शायद उनकी उम्र से ज्यादा बड़े हो चुके हैं. तो क्या हम उन्हें हैंडल सच में कर पाएंगे? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डेल्व डीपर इनटू. लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, हु अगेन कम्स विद एन एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग, एंड रादर उसके अंदर भी टियर 2 टियर 3 टाउन की स्कूलिंग, जहां पे वो शिक्षा और बहुत अलग तरीकों में एवोल्यूट कर जाती है, क्योंकि थोड़ा और कंजर्वेटिव समाज हो जाता है. अ वेरी वार्म वेलकम मिस्टर राजीव सक्सेना, द प्रिंसिपल ऑफ बिलाबोंग हाई स्कूल फ्रॉम रेवा, मध्य प्रदेश. राजीव जी, आपके शहर में, उस तरीके के शहरों में ओटीटी क्या इम्पैक्ट कर रहा है ऑन स्टूडेंट्स? Good evening to one and all present over here. I would like to thank all of you and particularly the Blog World magazine for providing us the platform to discuss on the topic, and which is definitely the topic which is to be discussed, which is the need of the time. मैं इससे पहले कि शुरू करूं, एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो आगे की I'm just reading from in between. The court has advised setting up of a pre-screening committee to regulate the movies and shows which are released directly on online platforms. Names are given, I won't take it. Thus, it is clear that the censorship for web series and contents on digital medium
is very much on the card. So जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े तो आप ये चीज समझें कि it is really a concern for the society and for our teens. Web series में contents are unfiltered. It is directly passed to the audience. मैं और भी कुछ पढ़ रहा था तो उसमें प्रोड्यूसर्स का कहना है कि रियलिटी लाने के लिए ये सब किया जाता है, बट देन टू माय अंडरस्टैंडिंग एज एजुकेशनिस्ट, रियलिटी के अलावा उसमें मिर्च मसाला जोड़ने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अनडिजायर्ड लैंग्वेजेस, अनडिजायर्ड कंटेंट्स इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनका एक्चुअल कंक्लूजन या कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। और ये डायरेक्टली आई वोंट से इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली हमारे टीन्स को अफेक्ट करता है। एक प्रिंसिपल ने अभी कहा, बिल्कुल सच बात कही, तुहिना श्रीवास्तव जी ने कहा, बच्चों को मोबाइल तो दे दिया हमने, लाइक माय ओन किड स्टडीइंग इन ग्रेड 5 एट द मोमेंट, मैंने मोबाइल दिया उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए। एक समय था जब हम बच्चों को टीवी देखने के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे कि आपका टाइम टेबल में आपका 1 आवर टीवी व्यूइंग है। आज बच्चा मोबाइल पे थ्रू आउट ऑनलाइन क्लासेस, सुबह 7:30 बजे से 1-1:30 बजे तक क्लास चलती है। ये अलग बात है कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया, बट देन उसके बाद बच्चा खेल रहा है, अब मैं उसको लेता हूँ, इफ आई टेक इट फ्रॉम द चिल्ड्रन, फॉर दैट मैटर एनी पेरेंट्स, तो बच्चा बोलता है पढ़ने के लिए तो आप दे रहे हो, तो आंखें को फर्क नहीं पड़ रहा है, अब जब मैं अपना एंटरटेनमेंट करना चाह रहा हूँ तो यू आर टेकिंग इट बैक। So it's really going to be a difficult call when we deprive the children of the gadgets that we have provided them. इसमें एक टर्म किसी ने और भी यूज की और वो बिल्कुल सही है। There is a term which is known as binge watch. That means watching the episodes. हमें याद है हम जब टीवी देखते थे, सीरियल आता था, आज एक एपिसोड देख लिया, बहुत पुरानी बात है, पहले की बात बता रहा हूँ, तो एक फ्राइडे को एपिसोड आ गया, नेक्स्ट एपिसोड के लिए नेक्स्ट फ्राइडे वेट करो। तो बिंज वॉच में एपिसोड आफ्टर एपिसोड आप देख रहे हैं, सो इट इज गुड। अगर आप टाइम पास करने के लिए देखते हो देन इट इज फाइन, एक्सेप्टेबल, बट इफ यू पास द टाइम वॉचिंग इट देन दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, और बिंज वॉच इज रिजल्टिंग इन दिस ओनली। तो ये कंटेंट्स का स्लैशिंग जरूरी है, सेंसरशिप होना चाहिए, कंटेंट्स डायरेक्टली नहीं पहुंचना चाहिए। और बिंज वॉचिंग के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, हमारे यहाँ एजुकेशनल इनिशिएटिव का जस्ट 30 सेकेंड्स एजुकेशनल इनिशिएटिव का माइंड स्पार्क हम यूज करते हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि बच्चे बराबर यूज करेंगे तो कैसे, उन्होंने बोला इसमें टाइम लॉक होता है, एक लिमिटेड टाइम के बाद बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये जो बिंज वॉचिंग की समस्या है, इससे करने के लिए अगर एओटीटी के प्लेटफॉर्म ये कर दे कि आप 2 या 3 एपिसोड से ज्यादा एक समय पर नहीं देख सकते, सो वी कैन दिस इज अ रिजोल्यूशन टू दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राजीव जी। पहले हमने तकलीफ इन्वेंट करी, अब उस तकलीफ पे ताला इन्वेंट करेंगे, तो शायद ये काम कर जाए कि पहले हम ओटीटी बना दें, सबको उस पर अट्रैक्ट कर लें, अब फाइनली एक लॉक लगा दें कि बच्चा इससे ज्यादा न देख पाए। एंड आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप डिस्कशन में लेके आए कि कोर्ट्स को जब इंटरवीन करना पड़ जाए कंटेंट मॉडरेशन में, तो आप ये खुद भी समझते हैं whenever the law intrudes in content, it finally results into some or the other freedom getting lost. तो हमें ये समझना होगा कि क्या वो ताला सच में सॉल्यूशन है, क्योंकि हम उस ताले के साथ या हम मॉडरेशन के साथ या हम सेंसरशिप के साथ आपकी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एक सिस्टम को शिफ्ट कर देते हैं। क्या हम उस सिस्टम पे इतना रिलाय करने को राजी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हम हमारे भविष्य को उस सिस्टम की डिसीजन मेकिंग पे रिलाय करने के लिए तैयार हैं। So let me now invite the next speaker to get a very different perspective to the discussion, because एक बहुत बड़ा impact सबकी physical life पे आया, सबकी life थोड़ी sedentary हो गई। So let's hear it from an expert who handles sports, और उसमें भी rather बच्चों का sports, और वो कैसे impact हुआ है। A very warm welcome Dr. Sagarika Roy Bhatia, the lead learning for Round Glass Sports from Mohali, Punjab. Sagarika ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself, and a very warm welcome. Thank you very much. Well, good evening, everyone. Everyone has spoken very well about the content on OTT. But let me tell you, my children are sportsmen.
and they all come from rural India. For us, language is the major barrier. And we always try to develop the 21st century skill set in these sportsmen who come from rural India. So for us, we really use OTT platform. In fact, for us, it's a boon, I would say, that they can develop good language. Because they come from rural India, they get good exposure of how the world works. They get exposure of real life problems. Like, we can't take them off these OTT platform, but then we guide them that you all come from rural India, but see how does the world works. We speak about Squid Games to them. We ask them that, we inform them that how people risk their life for money. So should you be doing this? So we have a lot of debating sessions on this, because we can't take these people away from it. So it is better that we as educationists get closer to them, using these platforms as a medium to communicate with them. So I really see many possibilities, because coming from rural India, that kind of exposure that they get, like you have, the anime that is Tokyo Revengers. Tokyo Revengers speaks so much about how the city of Tokyo works, and it works so differently. So this is a major exposure. Then also we get it's a lot of critical thinking, a lot of logical reasoning that we can do with our children watching the same platform with them. There is something called, Friends, and then you have the family reunion. So there are so many good things about these web series on OTT platform. And in fact I even ask my teachers to watch it, that you all also watch it, let the children also watch it, let me also watch it, and let's look at it differently, and then let's take it as an example. And then like how the family bonding and family and friends, the kind of comic situations that they have within each other, because it's sportsmen they're extremely aggressive, and they're forever looking forward to how should they compete with each other. If that player has made 4 goals, he's my friend, but tomorrow I'm really going to take revenge and I'm going to make 6 goals. So that revenge, that aggressiveness, we can really curb it down by showing them that see these friends, see these series, how beautifully amongst friends also they fight also, and then they get together, then they have fun together, they joke together, they go out together. So then this is how it should be. So then we develop these 21st century skills set, the language skill sets with these rural kids, because their view of life is very different, is very, very, very focused towards sports. So just a good diversion towards how the world works through these platforms is really exposing them to a different world, because this is something they really don't get to see in the real life. And because our children come from Manipur, Mizoram, Kerala, the interiors of these states. So, and they don't even, because of network, problems, they don't even get everything. But then when they come back here to Mohali, they have exposure, they have their phones with them. So this is something that we can't curb. So as well, we use it positively. That would be my way. And that's what we've been doing it in the past. We always connect our lessons to these and then we teach them. Thank you very much. एक तरफ हम बात कर रहे हैं लॉक्स लगाने की, एक तरफ हम उससे पूरी तरह से खोल दे रहे हैं, उसमें से शायद शिक्षा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ये दोनों पोलर एंड्स हमें पिछले 30 मिनटों में मिल गए हैं कि हम एक तरफ शिक्षा को इससे आइसोलेट कर रहे हैं, एक तरफ हम शिक्षा को इसका पार्ट बना दे रहे हैं. क्या हम इस इंट्रूजन को हैंडल करने के लिए सच में एक तरीका होता है हमेशा चीजों को रोक दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, दूसरा तरीका होता है समझा दिया जाए या मैच्योर करा दिया जाए. अब इन दोनों चीजों के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि सागरिका जी थोड़े से बड़े बच्चों को डील करती हैं, और जब ये डील करना छोटे बच्चों के लिए आ जाता है, स्टेक होल्डर्स चेंज हो जाते हैं, एग्रेशन बदल जाता है, उनकी ओपिनियंस बदल जाती हैं, एंड वहां पर ये कंटेंट ला पाना बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है. अभी से लेके अगले 5 से 10 मिनट इज एन ओपन फ्लोर. अगर आप कुछ बोल रहे थे, कुछ मिस हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अभी बोलना चाहते हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. बस थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे को चांस दे दीजिएगा बोलने का, और थोड़ी थोड़ी पेशेंस सब जने रखें. बट हाँ, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है बिफोर वी एक्चुअली मूव अहेड. हमारे पास यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम में से काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं. हमारे पास स्कूल लीडर्स हैं, हमारे पास कोचिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे पास में यूनिवर्सिटी एंड से भी कोई है, स्पोर्ट्स एंड से भी कोई है. एक बहुत आसान सा सवाल आप सबसे, क्या एजुकेशन सच में इतनी खुली कभी हो सकती है कि जहां आप ओटीटी के डिस्कशंस, या जैसा सागरिका जी ने एक आइडिया प्रपोज किया कि हम सच में इसे पूरी तरीके से खोल दें, क्या ये सच में हमारे इकोसिस्टम्स में कभी संभव हो पाएगा? और अगर है तो किस हद तक है? पहले आई वुड वांट टू गेट शिशिर जी इन,
कोशिश कीजिएगा सब जने थोड़ा कम समय लें। ओवर टू शिशिर जी, प्लीज 60 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। सो शिशिर जी, क्या आपको लगता है सच में इतना ओपन हम हो पाएंगे व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिया एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी? क्योंकि हमारे यहाँ टबूज थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको हम कैसे डील करेंगे? I doubt it, and I don't think also कि हमें करना चाहिए। सागर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो उन्होंने और राजीव जी ने कहा था, इन्हें कंबाइन कर देना चाहिए। ओटीटी में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसकी फिल्टरिंग नेसेसरी है, और हम फिल्टर्ड कंटेंट को ले लें और उसको हम उस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे सागर जी कह रही थी। वो एक बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव सॉल्यूशन हो सकता है। तो वी कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। We can use OTT in a positive way using selective content. So I think that could be a good solution. मैं थोड़ा शिशिर जी को काटना चाहूंगा। सेलेक्टिव कंटेंट के साथ सर एक मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम लेजिस्लेशन बीच में ले आते हैं, एक हमेशा फ्रीडम का क्वेश्चन आता है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करें? ये सर, ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है ना, see, we are slaves of our own concept of freedom. ये we have to understand that too much of exaggeration about freedom is actually misleading. मतलब give them enough rope and they'll hang themselves, है ना? we can't always, है ना, आप फ्रीडम उसी को दे सकते हैं जो उसको हैंडल कर सके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टीचर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स I think should they should be the legislators, जैसा आप बोल रहे हैं, and they I think should be the ones taking the call कि क्या फिल्टर करना है, क्या नहीं, और क्या देना है, क्या नहीं। या फिर इसी तरह के forums पे teachers can come together and frame some kind of a conduct। ठीक है, OTT ये कर रहा है, हमारे ये पैरामीटर्स हैं, उन्होंने पैरामीटर नहीं बनाए, हम बनाते हैं और इस पर फिल्टर करके फिर हम इसको अप्रूव करेंगे कि ये बच्चों के लिए सर्टिफाइड है या नहीं। एक टीचर का फिल्ट्रेशन फोरम आप सजेस्ट कर रहे हैं। तुहीना जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, और राजीव जी आप भी एक अगेन पॉलिटिकली थोड़ा स्टिमुलेटेड स्टेट है ये दोनों। इन दोनों जगह पे अगर हम सच में ऐसा कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, क्या लोग इसको सुनने समझने को तैयार होंगे? क्या पेरेंट्स हमें अधिकार देने को तैयार होंगे कि हम मॉडरेट कर दें, या हम आपको एक लिस्ट बताते हैं प्रपोज कि आप ये बच्चों को दिखा दीजिए? फर्स्ट ओवर टू तुहीना जी एंड देन राजीव जी। Sir, I actually would like to highlight that freedom word can be defined, but there is no periphery to freedom. So the moment when the word, whatever content, whatever filtration, whatever, हमने कब सोचा था कि हम बच्चों को फोन पकड़ा देंगे? We never thought. It was in a, मतलब 2 साल बाद भी अगर हम जाते हैं, 2 साल पुराना भी अगर सोचते हैं, if we go back to 2019, then also it was never in our wildest dreams that the children of pre-primary section, children aging 3 years, 4 years, they would be using a mobile phone as a tool for their learning. But then again, as you said, filtration, I contradict a little with Mr. Shishir that we can put, see, this is our part. देखिए हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करते भी हैं, but हमारी जो next generation है, it is always a little ahead than us, especially when it comes to technicality and usage of the latest techniques. I will not say कि हम लोग को नहीं आता है, हमने भी सीखा, लेकिन psychology says कि जो उनका लर्निंग फेज या लर्निंग टाइम है वो हमसे कहीं ज्यादा शॉर्ट है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमने फिल्टर कंटेंट करके दिया है, तो हाउ कैन वी गारंटी कि वो उतने ही कंटेंट तक सीमित रहेंगे? So that is my question. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम यहाँ पे ये है कि हम हमेशा जब भी हम कंटेंट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, हम पुलिसिंग के फैक्टर पे पहले पहुंच जाते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग पे हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, क्योंकि बच्चों के साथ पुलिसिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम एक्टिव लर्नर हो जाए, वो अपना ध्यान खुद रख ले, क्योंकि उतना मैच्योर वो नहीं होता। राजीव जी, योर थॉट्स ऑन दिस, कि आप कह रहे हैं कोर्ट इंटरवेंशन, शिशिर जी कह रहे हैं टीचर्स को बीच में ले आइए, सागरिका जी कह रही है पूरी तरह से खोल दीजिए, तो अब आप क्या कहते हैं कि कहाँ पे वो थोड़ा सा मिक्स बैठेगा? नहीं सर, वो सागरिका जी ने जो बोला वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बड़े बच्चों के साथ एड्रेस कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं एडल्ट्स हैं और वो समझ रहे हैं इस बात को कि दे कैन यूज देयर विजडम एज फार एज स्कूल इज कंसर्न। हमारे बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें फॉर दैट मैटर तो बड़े बच्चे भी बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे चले जाते हैं जो डिजायरेबल नहीं है। खैर वो तो बहुत डिबेटेबल हो जाएगा, मगर देखिए फ्रीडम जो है
फ्रीडम इज नॉट वेरी इजी. बहुत लोग बहुत आराम से फ्रीडम एंजॉय भी नहीं कर पाते. वी ऑल आर फ्री टू एंजॉय, मगर हमें ये समझना चाहिए कि फ्रीडम ऑल्सो कैरीज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज. तो जहां पर जब ये चीज नहीं होती है, तो लॉ हो या द लॉ मेकर्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हमें इंटरवीन करना ही होता है, क्योंकि हम हमारी जनरेशन को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते खराब होने के लिए. वी कांट डू दैट, एंड एज एजुकेशनिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिल्ट्रेशन हमें करना ही. अगर अनफिल्टर्ड कंटेंट जा रहा है और हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? तो ये तो हमें करना ही पड़े. आपने जो एक बात कही कि पुलिसिंग करना या फिल्टर, देखिए ऐसा है, ये ह्यूमन नेचर है. रिलक्टेंस, वी ऑल आर रिलक्टेंट टू चेंज. हमारे ऊपर कोई भी पॉलिसी लगा दी जाती है तो शुरू में बहुत बातें होती है और बाद में आवर माइंडसेट एक्सेप्ट्स दैट. So if it is in the larger interest of the society, we will have to do that. We will have to, and we must do that. Thank you. लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए कोशिश ये करें कि हम वापस अगेन कोई किसी तरीके का फिल्ट्रेशन क्यूरेशन ले आए. आई थिंक गुरमीत जी को यहाँ पे मुझे उनसे एक थॉट लेना है. उन्होंने 6th क्लास में ये चीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी कि जहां वो ओटीटी का डिस्कशन अपने क्लासरूम में कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था कि जब इतने छोटे बच्चों से आपने वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि चलिए ओटीटी जो मैं घर पे देख के आया हूँ उसका थोड़ा कंटेंट या उसका कोई रेफरेंस शायद बच्चे को एक्साइट कर दे या एटलीस्ट एक मीनिंगफुल डिस्कशन में एंगेज कर दे. मुझे ना एक याद आ रहा है कि बहुत साल पहले पढ़ा था कि एक पार्क में एक बेंच रखा था. वो बेंच ना रिसेंटली पेंटेड था, ताजा. उसके ऊपर लिख दिया कि ये पेंट गीला है, इस पे मत बैठिए. तो तकरीबन जो भी बंदा उस आया मतलब पार्क में, उसने टच करके जरूर देखा और उसको पेंट को खराब कर दिया. क्योंकि ये तो एक टेंडेंसी है हमारी. अगर हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि वो वाली लिस्ट क्यों कहाँ पे है जो नहीं देखनी है. राइट, दिस इज वन. सेकंड इज, अगर हम फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो अगर ओटीटी में फिल्टर लगाएंगे तो और बहुत सारे जिन चीजों से हम बच्चों को बचाना चाहते हैं वो ऐसे और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो वहां चले जाएंगे. तो वो नहीं होता. क्या हुआ है कि पहले तो था एक स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन, कंटेंट ही बड़ा लिमिटेड था. अब हो गया एक्सेस. तो अल्टीमेटली मॉडरेशन में तो आएगा. वो आना भी सेल्फ रेगुलेशन से ही है. मान लीजिए मैं फादर हूं, मैं ही मान लो ऑफिस से घर आया हूं या शॉप से घर आया हूं, तो मैंने ही आके अपना फेवरेट प्रोग्राम ऑन कर लिया है. तो मेरे बच्चे तो मुझे देख ही रहे हैं ना कि पापा बैठ गए हैं और कॉफी ले लिया है या चाय ले लिया और खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं. अब इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट. अब इसकी मॉरल पॉलिसिंग नहीं हो सकती. यू कैन नॉट रियली पुलिस इट. सो इट विल जस्ट हैपन. होगा ये कि अब इतना ज्यादा हो गया है वंस सिंस the world has now opened. अब वो लॉकडाउन से लोग बाहर आ गए हैं. people will become busier in their work और धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा. if children were watching it for say 7 hours a day, now they watch it maybe for 1 hour a day because they're busy in their either college work or school assignments. Now teachers are everybody is busy earlier also, but they're busier now. हाँ, ये बात जरूर है. I agree with the respected principal who works in Mohali. Yes, we can use this content if we become entertainers in the class so that children continue to focus only on those things which I am trying to convey to them. So I think it's a good tool, not only for language, for many things. Thank you. I think आप जो कहना चाह रहे हैं कि it's a very good hook to get them hooked on to education. Yes. वो hook आपको बहुत judiciously इस्तेमाल करना पड़ेगा. Absolutely. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वो फाइन लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ इन सम वे ऑफ टीचर ट्रेनिंग कि टीचर्स उसे इस्तेमाल कर पाए. सागरिका जी बहुत देर से आपने हाथ खड़ा कर रखा है. ओवर टू सागरिका जी की व्हाट आर द थॉट्स दैट यू वांट टू इंट्रोड्यूस. एंड इस पूरी टॉक के अंदर हम लोग जो जानने की या कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल इतना सा या बहुत छोटा सा पार्ट है कि हम इस पूरे इफेक्ट को क्या कोई पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं या ये केवल एक टॉक के साथ खत्म हो जाएगा और हम वापस अपने ओपिनियंस के साथ में घर सोने चले जाएंगे. So over to Sagarika ji. Thank you so much. ने पहली बात तो माइनस स्कूल चिल्ड्रन इटसेल्फ, मैं ग्रेड 8, 9, 10 की बात कर रही हूँ. ग्रेड 8 से लेके ग्रेड 12 तक के मैं बात कर रही हूँ बच्चे मेरे. The thing is that ours is a boarding school. बोर्डिंग स्कूल में उनको 2 घंटे फोन मिलता है
एंड 2 घंटे जब फोन मिलता है, दे हैव एक्सपोजर टू एवरीथिंग. हम फायरवॉल भी अगर लगा लेंगे, फायरवॉल के बाद भी फायरवॉल ऑल्सो डजंट स्टॉप, दे गेट देयर वेज टू गेट इनटू दीज साइट्स. तो द बेस्ट वे व्हाट वी से इज के कल चलो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव, वील टॉक अबाउट फ्रेंडशिप. तो आप लोग कल ब्रुकलिन 99, कल 2 घंटे में आप ब्रुकलिन 99 देख के आना. ब्रुकलिन 99 देख के कल हम ब्रुकलिन 99 पे वी विल टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, वी विल टॉक. तो यू नो एटलीस्ट आई नो एज अ प्रिंसिपल, आई नो कि वो 2 घंटे में उन्होंने ब्रुकलिन 99 नहीं देखा और उन्होंने कुछ और नहीं देखा. You know, at least this is the way that I can monitor. This is the only way that I can do the policing for them. Neto, it is not in my hands at all. No, I have no control, but I can indirectly control what they are watching by engaging them in the series that I know can be beneficial for them. And there is positive and negative to everything. है ना? तो एटलीस्ट आई कैन टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट कि चलो लेट अस एवरीथिंग में पॉजिटिव नेगेटिव है, लेट्स टेक द पॉजिटिव एंड लेट्स स्पीक अबाउट इट. एंड देन दे लर्न टू स्पीक एंड वी डिस्कस इट आउट. तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट. एंड पैंडेमिक में जब बच्चे घर भी चले गए थे, मुझे पता था कि ये करेंगे बच्चे, दे आर गोइंग टू वॉच, तो हमने उनको ऐसे डायरेक्ट किया कि आप ये देखिए एंड लेट अस टॉक अबाउट इट. एंड दिस इज हाउ देन वी डेवलप क्रिएटिविटी इन देम, वी डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग in them, we develop logical reasoning in them, we develop language skills in them. This is what we did throughout the pandemic to keep them engaged so that they don't divert into other websites. There is so much available on so much of content. Why are we talking of only web series? There's so much of other content also. I don't need to name them, but and children are the first ones, the inquisitive nature, as Gurmeet ji said, that you can't help it. You can't, aap kitna rokoge unko, so that is the thing. That's how we did it. So this is all from आप उन्हें बड़ी कैडबरी नहीं दे सकते, तो आप उन्हें छोटी टॉफी खिला के एंगेज कर लीजिए. एंड रादर वो एंगेजमेंट तो आपके हाथ में है ही कि आप पूरी कैडबरी नहीं खिला सकते, कोई नहीं एक्लेयर्स दे दीजिए, लेकिन वो एक्लेयर्स का फीड ये कंट्रोल कर लेगा कि कम से कम वो उसी टेस्ट जोन में बना रहे, वो उसके बाहर ना चला जाए. एंड आई थिंक ये काफी इनोवेटिव अप्रोच है जो टीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आई थिंक गुरमीत जी ने इनएडवर्टेंटली वो शायद अपनी क्लास में इंप्लीमेंट थोड़ी बहुत की, एंड आपने उसको बहुत कॉन्शियसली और एक बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दे दिया. एंड आई थिंक दिस कैन बी यूज्ड बाय अदर्स एज वेल. दिव्या जी, यू हैव बीन इनटू हायर एजुकेशन की मार्केटिंग. आप हमेशा समझती हैं कि जब ये टीनेजर से बात करने की कोशिश की जाती है, तो और जब भी आप उनसे लाइफ की बारे में बात करते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग टॉपिक फॉर देम. और उस समय पे उन्हें हुक करने के लिए हमें कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड या रादर उनकी दुनिया से ज्यादा बड़े रेफरेंसेस लाने पड़ते हैं. एंड दैट्स वेयर दे गेट अ लिटिल मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड. तो क्या आपको लगता है कि वो मार्केटिंग या वो आउटरीच बदल रही है या बदलेगी, या किस तरीके से अब इम्पैक्ट हो रही है? Yes, obviously it is changing because जब pandemic से पहले kids से बात करते थे हम लोग, it was completely different. And ये बीच में जो pandemic खुला था and students started coming to college for enquiries and such things, the way we used to discuss with them was completely different. Parents बोलते थे हमें कि अरे ये पूरा दिन TV पे ही लगा रहता है, he doesn't go out to play, he doesn't do anything. They used to tell us नहीं कैसे तो इनको college बुला लो ताकि बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे वापस. So I have seen, as Sagarika ma'am rightly said, you need to structure what the students are watching. Like she would give a topic, chalo friends dekh ke aa jao, Brooklyn 99 dekh ke aa jao, because these are the web series which would give them some knowledge about friendship or family etiquettes or something. So in this way, I've seen my professors also interact with the students, and even we as outreach managers, we also give them some reference about all these things and try to interact with them, taking that concept in mind. But as Gurmeet sir said कि ये तो होने ही वाला है कि बच्चे देखने वाले. अभी 7 घंटे देखते थे, एक बार स्कूल चालू हो जाएगा तो फिर शायद वो 1 घंटा हो जाएगा. But yes, you cannot take that out of them. I don't think you can take that out of them. We cannot take them out of them. और most importantly, हम कहीं ना कहीं एवोल्यूशन पे विश्वास करें कि जैसे ये कहीं और व्यस्त होंगे, ये भूल जाएंगे, या जैसे टीवी सबलाइम हुआ, ये भी सबलाइम कहीं ना कहीं हो जाएगा. बट आई थिंक एक बहुत अच्छी अप्रोच सागरिका जी ने दी, एंड सभी जनों ने बहुत अच्छे इसमें इनपुट्स दिए कि किन किन तरीकों से आप बच्चों तक पहुंच सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम जो इसमें से आ रहा है, now all the educationists who might be watching this, anybody who might watch this in the future, आप सबको एक और बहुत बड़ा कारण मिल गया कि आप घर जाएं और नेटफ्लिक्स खोल लें, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए चल क्या रहा है, तभी आप बच्चों को एंगेज कर पाएंगे. So you have got one more reason to entertain yourselves on the OTT, because वो क्यूरेशन जो है वो केवल आप ही के पास है. बिकॉज बच्चे का विजडम आप ही ने बनाना है, आप ही के छोटे छोटे एक्शन से वो चीज बच्चों में ट्रांसेंड हो जाएगी, और शायद अगली जनरेशन थोड़ी और इन्फॉर्म्ड, थोड़ी और कॉशियस
थोड़ी और समझदार हो जाएगी, बिकॉज OTT अपना इफेक्ट कर चुका है. आपका इफेक्ट करने का टाइम अब शुरू हुआ है. सो ट्राई फाइंडिंग मोर एंड मोर अप्रोचेस जहां पे आप उन्हें किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिवली इंपैक्ट कर पाएं. एंड वी एट ब्लब वर्ल्ड ट्राई टू डू दिस एवरी सिंगल डे. ब्लब वर्ल्ड का केवल मोटिव एक ही है, टीन्स इंस्पायरिंग टीन्स. हर महीने हम कोई ऐसा बच्चा ढूंढते हैं जो कुछ बहुत अमेजिंग कर रहा है एंड उसकी स्टोरीज दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं. एंड इन द मोस्ट एंटरटेनिंग वे पॉसिबल, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा फैक्टर है, सुननी सबने कहानियां ही हैं. आप कितनी अच्छी सुना सकते हैं, उतना सा क्वेश्चन है. एंड आई थिंक हमें सारे टीचर्स को या पूरी एजुकेशन कम्युनिटी को अब स्टोरी टेलिंग एज अ स्किल सीखनी शुरू कर देनी चाहिए. एंड वन ऑफ द इनिशिएटिव्स वेयर वी आस्किंग फॉर योर हेल्प इज ब्लब वर्ल्ड अभी कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी किशोरों की संसद बनाने की. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट. इफ यू थिंक यू हैव अ टीनेजर अराउंड यू हु कैन सॉल्व अ लोकल और अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट उस बच्चे को ट्रेन करेगा, मेंटर करेगा और फंड करेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, he won't spend money on us, he'll only spend his intelligence. We are thankful to our partners UNESCO, New Delhi office, UNESCO, MGIP for supporting us. तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा टीनेजर आपको दिखता है जो सच में कुछ कर सकता है, try listing more and more opportunities for them. और ऐसी opportunities जिन्हें वो एक objective view से देख सकें और अपनी जिंदगी में कोई नया aspect जोड़ सकें. I hope you enjoyed the last 60 minutes that you spent with us. This was the Blub World Web Talks 173rd episode. If you enjoyed and if you want to attend the future sessions, you can open your audio, say a big yes. All the people listening to us on YouTube, please subscribe to the channel, keep commenting, keep sharing your ideas, and we'll try to host more talks on the topics that you suggest. Thank you so much everyone for tuning in on Blub World. Thank you so much all the guests for being here with us. Thank you so much. Thank you to you. It was entertaining. Thank you. Thank you. Thank you. It was wonderful. Thank you. Wonderful. Yeah.